Welcome back to YouTube platform LNTC Pandwa. Okay, this is our second lecture on English grammar on a very vibrant topic, clause. In previous lesson, we have already discussed what a clause is and how can we derive a clause from a group of words. Today we are going to discuss the types of clause. Okay, my champions, just look at the slides. लेक्चर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज ओके देन पिछले क्लास में प्रीवियस लेसन में हम लोग डिस्कस किए हैं बाबू लोग कि क्लाउज क्या होता है। तो पिछले क्लास में आपको डिस्कशन तो किया गया था, उसका डिफरेंशिएशन भी अच्छे से बताया गया था, किया गया था। आज के इस सेशन में उसको डिफाइन, उसका जो डेफिनेशन है वो आप तक अच्छे से समझाया जाएगा, आप तक अच्छे से पहुंचाया जाएगा। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, here you can see what a clause is and how can you define a clause. Clause, as you can see, clause. Okay, clause. What a clause? What is a clause? We can define a clause by saying that a group of words, there are many two conditions to make a clause from a group of word. The first condition is it must be a group of word, it must be a group of words. That means a single word can't make a clause. Okay, it is very clear and very obvious that a single word can't be a clause. Clause should be formed by a group of words. As you can see on the definition, a group of words having the combination of subject and verb. And if there is a first condition, a clause is a group of words, it is the first condition of making a clause. And the second condition is having the combination of subject and verb. This is the second most relevant condition to make a clause from a group of words. As you can see, subject plus verb. That means we can define a clause by saying that a group of words having the combination of subject plus verb is known as clause. Okay, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारे बच्चे, क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है क्लाउज, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउज। ये पिछले क्लास में हम लोग डिफाइन कर लिए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जो दूसरा जो मेन पॉइंट था, जो मेन दूसरा जो फोकल पॉइंट था वो ये था, इच में एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग और मे नोट। इसका जो कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग जो है, मीनिंग की अगर बात करें तो क्लाउज से कभी कभी संपूर्ण मीनिंग आपको समझ में भी आ जाएगा, समझ में आए, जैसे एग्जांपल आप लोग को दिया जाएगा। और कभी कभी जो मीनिंग होता है पूरी बात हमको समझ में नहीं आ पाती है। ठीक है, तो दूसरा जो फोकल पॉइंट हम लोग का यह है क्लाउज को देखते वक्त, इट मे एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग और मे नोट। ये क्या कर सकता है, एक कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग दे भी सकता है और कभी कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग नहीं भी दे सकता है। ओके, उसको हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं, देखिए एग्जांपल से। हमने एक एग्जांपल लिया, हियर इज एन एग्जांपल, आई मेट अ मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। I met a man who helped me yesterday. This is a clause. We can say it as a clause because there are two main conditions for being a group of words a clause. Okay, the first condition is a group of words. Here this example is a group of words, it is obvious. Okay, I is a word, met is a word, a is a word, man is a word, who is another word. There are many words we can identify. I is the first word, it is suppose mate is second word, a is third word, and man is fourth word. That means there are many words that we can claim that this is a group of words. Then the first condition is fulfilled in this example. The first condition of making a clause is fulfilled in this example. By that means this is a group of words, there are many other different words, that means this is a group of words. Then the first condition, group of words, being a group of words, is fulfilled in this example. Then the second condition of being a clause is having the combination of subject and verb. That means it must have a combination of subject and verb. That means subject and verb combination is found here or no? We have to check it. Just check it. I, there is a pronoun I, which is functioning as a subject, I here is subject, and met is verb. That means subject and verb are also found.
तो इस एग्जाम्पल में हम लोग बता पा रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है आई मेट अ मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, इस एग्जाम्पल में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसको क्लाउज क्यों बोला जा रहा है पहले वो हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। इसको क्लाउज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्लाउज का डेफिनेशन में 2 कंडीशन बताया गया आप लोग को। क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो ये जो एग्जाम्पल है आई मेट ए मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट इज वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर, ओके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ओके। देन दूसरा जो कंडीशन है क्लाउज होने के लिए वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब आया है या नहीं आया है, ये चीज को देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन है आई, कौन सा प्रोनाउन है, आई। आई प्रोनाउन है तो किसका फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट का। यहाँ पे सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है आई। दूसरा एक वर्ड हम लोग देख पा रहे हैं मेट, मेट वर्ब है, मीट का पास्ट है, समझ में आया कि नहीं, तो वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी मिल गया हम लोग को यहाँ पे और वर्ब भी मिल गया। जब ये दोनों चीजें मिल गई तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया। तो इन दिस एग्जांपल वी कैन क्लेम दैट दिस एग्जांपल इज एग्जांपल ऑफ ए क्लाउज। ये एग्जांपल एक क्लाउज का एग्जांपल है बिकॉज दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, दैट मींस ये क्लाउज है। अब हमको बताया था ना दूसरा पॉइंट क्या था कि ये कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग कभी दे भी सकता है और कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग कभी नहीं भी दे सकता है। तो इसमें तो ये देखो, ये इसका 2 पार्ट अगर हम बनाएंगे अगर इस क्लाउज का 2 पार्ट बनाएंगे, देखो आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन, ओके। इसको 2 पार्ट हम लोग लेते हैं, आई मेट अ मैन में, फिर दूसरा पार्ट यहां से लेते हैं हु हेल्प मी यस्टरडे, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट और ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट। तो आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला, मैं एक आदमी से मिला। तो अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो कंप्लीट है। कंप्लीट किस में कंप्लीट इन द सेंस ऑफ मीनिंग, समझ में आया कि नहीं, इन द सेंस ऑफ मीनिंग, ये हमेशा याद रखिएगा, इन द सेंस ऑफ मीनिंग की बात की जा रही है, इन द सेंस ऑफ मीनिंग। तो ये चीज कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग दे रहा है, आई मेट अ मैन कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग है। लेकिन उसके जस्ट ऑन द अदर हैंड अगर देखिएगा आप लोग, हु हेल्प मी यस्टरडे, जिसने मेरी सहायता की, जिसने मेरी कल सहायता की। तो अगर ये हम बोलते हैं ना जिसने मेरी कल सहायता की, इतना बोलने से ना कि जो लिजनर होगा, जो ऑडियंस होगा, उनको समझ में नहीं आएगी। बस इतना हम लोग जाकर बोल रहे हैं, किसी एक आदमी के सामने चले गए, वहां पे जाकर डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, जिसने मेरी सहायता की। तो पूरा पूरी बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। दोनों क्लाउज ही है, देखो ये भी आई मेट अ मैन, ये भी एक क्लाउज है, हु हेल्प मी यस्टरडे ये भी एक क्लाउज है। क्यों क्लाउज है, क्योंकि दोनों में ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है बाबू लोग, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है, ठीक है। तो दोनों में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का है, दैट मींस दोनों एग्जांपल क्लाउज के ही है। लेकिन एक कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग दे रहा है, दूसरा इनकम्प्लीट है, मतलब उसका सेंस ऑफ मीनिंग इनकम्प्लीट है, पूरा पूरी मीनिंग हमको समझा नहीं पा रहा है। तो इस स्लाइड से एट द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट द क्लाउज मे एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग और मे नॉट, ओके। क्लाउज may express the complete sense of meaning, as you can see in this example, I met a man. This example is very suitable for completing the sense of meaning. And the second example, who helped me yesterday, this example is also an example of clause, but it is not delivering a complete sense of meaning, it is not expressing a complete sense of meaning. ये जो दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग का, ये एग्जाम्पल क्या नहीं कर पा रहा है, एकदम कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग हम लोग को नहीं दे पा रहा है, ओके। इतना बात हो गया बाबू लोग का क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की तरफ, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। टाइप्स ऑफ क्लाउज, टाइप्स ऑफ क्लाउज। Here we have discussed in previous lesson that there are mainly 2 types of clause. If you talk about the types of clause, we can say that a clause is totally divided into 2 types. The first, देखो, there are mainly 2 types of clause. clause के 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, ओके। देन द सेकंड टाइप इज सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। बताए थे पिछले एग्जांपल में भी आप लोगों को समझाया गया था कि जो क्लाउज जो होता है उसको 2 टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। पहला एक ऐसा टाइप, मतलब जो कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग कन्वे कर देता है खुद से, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी, okay, as you can see in this on this slide, there are mainly 2 types of clause. First is principal clause,
उसी को दूसरा नाम है बाबू लोग मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं हम लोग। उसका एक और भी नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो मेन इसलिए बताए थे कि दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल देखिएगा, आई बॉट अ कार दैट कोलैप्स्ड विथ ट्रक लास्ट ईयर। ओके, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिएगा, तो यहाँ पे दो क्लाउज है इसमें। आई बॉट अ कार पहला ये है, आई बॉट अ कार पहला ये है, ठीक। दूसरा यहां से देखो दैट कोलैप्स्ड विथ ट्रक लास्ट ईयर, दूसरा ये क्लाउज। फर्स्ट क्लाउज इसको मान लेते हैं सेकेंड क्लाउज, दोनों क्लाउज है ना, क्लाउज का इसमें फुलफिलमेंट आ रहा है। क्लाउज उनका होने के लिए क्या होना था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होना है, दोनों है। ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है। देखो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है बाबू लोग, ये बॉट क्या है तो वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, दैट मींस ये क्लाउज है। फिर इसमें भी दैट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ पे, और कोलैप्स क्या है वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब देखना हम लोग को यहाँ पे ये है कि ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दोनों क्लाउज है, तो ये दोनों किस टाइप में फॉल करते हैं, किस टाइप में आते हैं, ठीक है। तो ये कौन प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन मेन क्लाउज है, समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल देखो मेन क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज को क्या बोला जाता है, मेन क्लाउज। ये मेन इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि ये मेन मतलब हम लोग किसको बोलते हैं, एक जो संस्था चलाने वाला है या तो कोई इंस्टीट्यूट चलाने वाला है, तो मेन आदमी उसी को बोला जाता है। अगर मेन आदमी वहां से हट जाए तो वो संस्था का हो जाता है, डगमगा जाता है, हिल जाता है एकदम ना, मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। वही यहाँ पे भी समझिएगा कि अगर एक क्लाउज में एक ऐसा क्लाउज है जिसको हम लोग मेन क्लाउज से रेफर कर रहे हैं, वो एक ऐसा क्लाउज है कि अगर वो सेंटेंस से हट जाए ना तो सेंटेंस का जो मीनिंग मिलना था, समझ में आएगा, जो मीनिंग मिलने के लिए उस सेंटेंस को लाया जा रहा था वो मीनिंग नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो उसको मेन क्लाउज बोला जा रहा है कि अगर वो सेंटेंस में नहीं रह पाएगा तो उसका कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा। वही बात आप लोग को यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखिए आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा, दैट कोलैप्स्ड विथ ट्रक लास्ट ईयर, जिसका कोलैप्शन हुआ किसके साथ, ट्रक के साथ, लास्ट ईयर पिछले साल जो कोलाइड किया मतलब टकराव हुआ उसका एक ट्रक के साथ, तो मैंने वैसे कार को खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो क्लाउज देखने को मिल जाता है, आई बॉट अ कार दैट कोलैप्स्ड विथ ट्रक लास्ट ईयर। इसमें से आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए किस क्लाउज के बिना दूसरा क्लाउज अधूरा है। अगर इस क्लाउज की बात करें, फर्स्ट क्लाउज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लाउज दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट इन मीनिंग। ये जो क्लाउज है ये अपना मीनिंग समझाने के लिए एकदम क्या है, इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं हो रहा। डायरेक्टली हम बोलेंगे आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा, तो जो सुनने वाला लिजनर होगा वो आराम से समझ जाएगा इस बात को, हाँ ठीक है आप कार खरीदे, हाँ ठीक, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे ये जो क्लाउज है वो क्या, क्लाउज क्या है, इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है यानी कि ये मेन है, क्या है बाबू लोग, मेन। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज, या तो बोलेंगे मेन क्लाउज, या तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज। ओके, लेकिन जो दूसरा जो क्लाउज है, जिस कार का टकराव किसके साथ हुआ लास्ट ईयर, पिछले साल, एक ट्रक के साथ हुआ, ऐसे बोल रहे हैं, जिस कार का टकराव पिछले साल एक ट्रक के साथ हुआ। तो यहाँ पे बस इतना बोलने से पूरी बात हमको समझ में नहीं आएगी। इसको अपना मीनिंग समझाने के लिए, ये जो है इसको, ये क्लाउज को अपना मीनिंग समझाने के लिए ये फर्स्ट वाले क्लाउज पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इसके बिना ये अधूरा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि ये क्लाउज डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे क्लाउज पर अपना मीनिंग समझाने के लिए, तो ये डिपेंडेंट है, ये मेन क्लाउज पर क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, तो इसको दूसरे वाले क्लाउज को बोला जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज या तो फिर डिपेंडेंट क्लाउज। ओके, from this slide we can explain that there are mainly two types of clause. First is principal clause, that is also known as main clause, that is also known as independent clause, and the second type of clause is subordinate clause, or that is also known as dependent clause. Okay, we have already discussed with these examples and elaborated as well. Okay, then आप लोग ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउज हो गया। अब अगर हम लोग फर्दर बात करें टाइप्स ऑफ क्लाउज में, फर्दर बात करें, मेन क्लाउज तो मेन क्लाउज है, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लाउज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसका अलग फर्दर डिस्कशन किया जा सकता है, उसका फर्दर जो कैटेगराइजेशन है वो भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वी आर रनिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, subordinate clauses are further divided into three types. अब बात करेंगे हम लोग subordinate clause की। अगर एक स्ट्रक्चर ले लीजिएगा तो हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे एज यू कैन सी, यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रक्चर ले लो, जैसे कि क्लाउज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लाउज। तो ये क्लाउज को हमने दो टाइप में बांटा था, एक बार रिकैप कर रहे हैं बाबू लोग। एक था मेन क्लाउज, मेन था,
दूसरा था सब ऑर्डिनेट, क्या था? सब ऑर्डिनेट। इतना था, क्लियर था इतना? अब मेन क्लास को कोई क्या नहीं बनता है, डिवीजन नहीं बनता है, वो उतना काफी है। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लास के 3 टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं? 3 टाइप। तो इसको हम लोग ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, देखो ऐसे इसके समझा रहे हैं। एक होता है नाउन, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। दूसरा होता है, ये आप लोग यहाँ पे दिखा गया है, आप लोग बस नाउन क्लॉज इसको बोलते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। एंड थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। क्या है? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जान रहे थे, ठीक है, जिसमें जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किस पर डिपेंडेंट था? मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट था। तो उसी को यही एक स्ट्रक्चर बना दिया है आप लोग को देखने के लिए कि देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला है जिसको हम लोग जानते हैं नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। अब एक एक करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल इलेबोरेट एवरीथिंग एंड एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्लॉजेस, ओके, एज वेल। तो फर्स्ट है हम लोग का नाउन क्लॉज एंड सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज, थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। इफ यू टॉक अबाउट दिस कैटेगराइजेशन, अगर हम लोग इस कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को देखने में लग रहा है नाउन क्लॉज। नाउन, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है नाउन, नाउन क्लॉज, नाउन इसमें आया है नाउन। तो ये जो क्लॉज होगा, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो कहीं ना कहीं नाउन से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन जरूर होगा, तभी तो उसके नाम में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। यहाँ पे नाउन आने का कुछ ना कुछ तो संबंध इसका नाउन से जरूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव वर्ड का यूज किया गया है, दैट मीन्स वो जो क्लॉज है उसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जरूर किससे आ रहा है? कुछ ना कुछ कनेक्शन एडजेक्टिव से होगा, इतना तो हमको कह सकते हैं हम लोग। उसी तरह एडवर्ब, तो कुछ ना कुछ ये भी क्या होगा? एडवर्ब वर्ड से रिलेटेड होगा। तो ये जितने भी नाउन क्लॉज है, या तो एडजेक्टिव क्लॉज है या तो एडवर्ब क्लॉज है, वो ये तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी बस इतना समझ लीजिए फॉर रिकैपिंग कि क्लॉज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड है एडवर्ब क्लॉज, as you can see on this slide. Okay, then we are going to discuss first category of subordinate clause, that is noun clause, that is noun clause. Okay, we are just running to the next slide, just what a second. Okay, noun clause, this is a very vibrant topic. देखिएगा, पहले इसका डेफिनेशन देखिए। A clause that functions as a noun in a sentence is called a noun clause. I am repeating again. A clause that functions as a noun in a sentence, it is called noun clause. हम बताए ही थे कि नाम ही से आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि नाउन से इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। नाउन से लग रहा है ना कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन किससे है? नाउन से जरूर है। देखिए, as you can see near the word noun, the word noun, noun, अगर हम लोग नाउन क्लॉज की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ संबंध किससे है? नाउन से जरूर है। अब पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन होता क्या, आप लोग बहुत ही बेसिक लेवल पर पढ़ चुके हैं। अब उसका ग्रामेटिकली क्या इंपॉर्टेंस है सेंटेंस के फॉर्मेशन में, क्लॉज के फॉर्मेशन में, वो चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो वह चीजें देखिए क्या है कि जो नाउन है उसका फंक्शन क्या क्या है, जो नाउन है उसका फंक्शन एक सेंटेंस में क्या क्या है। तो आप लोग सुने होंगे या तो देखे भी होंगे कि जो नाउन है, जो नाउन होता है वो सेंटेंस में 3-4 काम तो आराम से कर सकता है। पहला, आप लोग देखे होंगे, नाउन क्या कर सकता है? एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। नाउन एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। उसी तरह नाउन जो है एक सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट मींस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अगर जो सिंपली हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये नाउन सब्जेक्ट का फंक्शन भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी कर सकता है, एज वेल एज 2 फंक्शन और भी ये करता है।
वो है ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन। क्या है? कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन। ये जो नाउन है वो सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है। उसी तरह नाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ओपी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का भी फंक्शन कर सकता है। कौन? एक नाउन। सेंटेंस में एक नाउन। तो चार फंक्शन हो गया नाउन का। जनरली अगर नाउन की फंक्शन की बात करें सेंटेंस में तो चार फंक्शंस। ओके, देयर आर मेनली फोर फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। द फर्स्ट इज noun can act as a subject in a sentence, as well as noun can act as an object of verb in a sentence. Then the thirdly, and the third function of noun, if we talk about the third function of noun, we can say that noun can also act as complement in a sentence, as a complement in a sentence. That is also denoted by C. Okay, and the last use and the last action, last function of noun is that is used as an object of preposition. That is used as object of preposition. तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन का जो फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से आसानी से लिख सके। देखो देखिए, आप लोग लिख सकते हैं जैसे नाउन जो है ना, नाउन, नाउन जो है इसका चार फंक्शन है एक सेंटेंस में। ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। किसका फंक्शन करेगा? सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट का। दूसरा जो फंक्शन है इसका वो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है सेंटेंस में। तीसरा जो फंक्शन है इसका वो है कॉम्प्लीमेंट का। किसका है? कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का। चौथा जो इसका फंक्शन है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये चार चीजें हैं। तो नाउन एक सेंटेंस में चार फंक्शन कर सकता है। जनरली बात करें तो और भी करता है, लेकिन अभी जितना कॉन्सेप्ट समझना है उसके हिसाब से। पहला है सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, दूसरा है ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा, चौथा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का फंक्शन करेगा। ठीक है, तो नाउन ये चारों का काम करता है, कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं कि नाउन का जो फंक्शन है चार होता है सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये नाउन जो क्लाउज है, नाउन जो क्लाउज है इसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया है? नाउन वाला वर्ड। मतलब, और इसका डेफिनेशन भी हम लोग कैसे दिए हैं? ए क्लाउज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड ए नाउन क्लाउज। एक ऐसा क्लाउज, एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लाउज जो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं नाउन क्लाउज। अब नाउन का फंक्शन मतलब क्या क्या होता है तो समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे रिलेटेड है। नाउन का फंक्शन करने से मतलब है कि वो सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, या तो फिर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, या तो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में आया है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा। ठीक है, अब इट कैन एक्ट एज सब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन का फंक्शन बताया जा रहा है। इट कैन मतलब जो नाउन क्लाउज है वो नाउन क्लाउज इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। और यहाँ पे नहीं लिखा गया है लेकिन ये वाला आता है, समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा तो भी ठीक रहेगा। समझ में आया कि नहीं? चौथा ये है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, तीसरा है कि कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा, चौथा आप लोग ये दिखाई दिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भी आता है। ठीक है, अब उसका हर एक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो नाउन क्लाउज किसको बोलेंगे? एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लाउज जो एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है। नाउन का फंक्शन करने से क्या मतलब है कि वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ होगा, या तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ होगा, या तो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ होगा, या तो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ होगा। ओके, उसी को बोलेंगे नाउन क्लाउज। अब एक एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये वाला एग्जाम्पल हटा दीजिए, ये एग्जाम्पल को इरेज, ये नहीं चाहिए हम लोग को। ओके, चलिए देखते हैं। हम लोग का चार फंक्शन है। पहला फंक्शन है एज ए सब्जेक्ट का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है हम लोग को एज ए ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है एज ए कॉम्प्लीमेंट है, और चौथा फंक्शन है हम लोग का एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो अभी हम आप लोग को पूछेंगे आपसे कि किस में कौन सा फंक्शन कर रहा है। आप लोग को पता है ना कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं या तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो वही बात को हम पूछने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम।
चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से ना। वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब इज डाउटफुल। देखिएगा, वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब इज डाउटफुल, वो आदमी जॉब के लिए सुटेबल है, फिट है या नहीं है, ये बात कहना थोड़ा सा डाउटफुल है, उसमें थोड़ा सा डाउट है। समझ में आया कि नहीं? तो जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिन कर रहा है कौन व्यक्ति इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, वो ऐसा बोल रहा है वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब इज डाउटफुल, वो आदमी इस जॉब के लिए वो आदमी इस जॉब के लिए फिट है या नहीं फिट है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखो, ये जो सब देखो यहाँ पे एक क्लाउज आया, यहाँ पे वेदर, यहाँ से वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब, यहां तक वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब इज डाउटफुल। ठीक है, तो आप लोग को देखे होंगे ना, यहाँ पे देखो इज क्या है आप लोग, तो इज वर्ब है कि नहीं है जी, है। ठीक है, अब बताओ कि एक सेंटेंस में, अगर सेंटेंस की बात करें तो हम लोग कैसा आता है सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, एस वी सी पैटर्न में आ सकता है। तो ये वाला जो है ना वो एसवीसी पैटर्न में आया हुआ है, ये पैटर्न में है, ये इस सेंटेंस का जो पैटर्न है वो एसवीसी पैटर्न है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब इज डाउटफुल, तो यहाँ पे वर्ब आ गया, इज क्या है, वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आना है, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, तो सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतना बड़ा जो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा गया है, देखिएगा यहाँ तक वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा गया है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्लाउज है ना, जरूर क्लाउज है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है और क्या भी है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, क्लाउज भी है। ठीक है, तो ये क्लाउज नाउन क्लाउज है, इसलिए नाउन क्लाउज है क्योंकि ये क्लाउज वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब, ये क्लाउज फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट। किसका फंक्शन कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया, इज हो गया यहाँ पे वर्ब और ये हो गया क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका बोलेगा कि एसवीसी पैटर्न में आया हुआ है, वही पैटर्न बता रहे तुम लोग को। तो यहाँ पे वेदर ही इज फिट फॉर द जॉब, क्या वह जॉब के लिए फिट है कि नहीं है, इज डाउटफुल, ये बात कहना डाउटफुल है। तो ये जो क्या है, ये जो स्टेटमेंट है यहां तक समझ में आया कि वो क्या है, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। उसको हम लोग कैसे ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि देखो इससे पहले वर्ब आ गया है, तो वर्ब से पहले सेंटेंस में क्या ही आता है, सब्जेक्ट को ही लाना है ना, क्योंकि ये एसवी इसी पैटर्न का आया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो ये जो क्लाउज है वो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो सब्जेक्ट का फंक्शन एक नाउन क्लाउज ही कर सकता है। ओके, इसलिए ये नाउन क्लाउज है, इतना तो पता चल गया। फिर दूसरा वाला एग्जांपल देखिएगा, आई टोल्ड, मैंने कहा, दैट ही वुड कम, कि वो आएगा, दैट ही वुड कम, कि वो आएगा। तो यहां पे देखना इसका जो पैटर्न है, पहले सेंटेंस का पैटर्न को पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया, यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, ये वाला जो क्लाउज है वो फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो एसवीसी पैटर्न में आया हुआ था। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस का पैटर्न है, वो सेंटेंस का पैटर्न जो है वो एसवीओ पैटर्न में आया हुआ है। कौन सा पैटर्न में आया हुआ है? एसवीओ पैटर्न में। अब ये वाला एग्जांपल क्लियर है ना आप लोग को, कि इसमें जो ये क्लाउज आया है वो क्लाउज किसका फंक्शन कर रहा है, वो क्लाउज फंक्शन कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट, एस का। ठीक है, बताया था कि सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। उसी तरह आई टोल्ड दैट ही वुड कम, मैंने ये कहा कि वो शायद आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो सेंटेंस का पैटर्न है वो है एस वी एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न में आया है ये वाला सेंटेंस। अब कैसे बोल सकते हैं, आई देखिए सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब है। अब इसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है, जो क्लाउज यूज किया गया है, दैट ही वुड कम, ये आई सब्जेक्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब ये वर्ब टोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहां से दैट ही वुड कम, दैट ही वुड कम, ये जो क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड से क्लाउज है ये। ठीक है, और ये नाउन क्लाउज इसलिए है क्योंकि ये देखो वर्ब के बाद क्या आना है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, तो टोल्ड वर्ब है, ये भी मिल गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे क्या आया है, क्लाउज का यूज किया गया है, उसका फंक्शन कैसा है, ऑब्जेक्ट का रूप में आ रहा है। ठीक है, तो आई टोल्ड, मैंने कहा, क्या कहा, जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हमको किसका जवाब मिलता है, व्हाट का रेस्पॉन्स मिलता है, तो क्या कहा, तो ये कथन हमने कहा है, ये स्टेटमेंट हमने बोला है, क्या बोला है, दैट ही वुड कम। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे जो क्लाउज है वो किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, देन तो इसमें जो क्लाउज है, ये जो नाउन क्लाउज है, किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए बोले थे कि नाउन क्लाउज एक ऐसा क्लाउज है जो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है,
नाउन का फंक्शन करने से क्या क्या मतलब था कि वो सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट होके आ सकता है, कभी ऑब्जेक्ट होके आ सकता है। अब थोड़ा सा नीचे चलिएगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क्स। हम बताए अभी आप लोग को कि एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन कर सकता है नाउन क्लॉज, एज अ ऑब्जेक्ट, दोनों एग्जांपल देख लिए हैं। अब चौथा हम आप लोग को बताए थे कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भी आ सकता है। कौन? ये नाउन क्लॉज। यहां पे वही हो रहा है, देखिएगा ये एग्जांपल देखो। इट डिपेंड्स, तो इट हो गया का सब्जेक्ट, डिपेंड्स हो गया वर्ब। ऑन देखो, ऑन 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 को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये है हम लोग का प्रीपोजिशन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद एक क्लाउज आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद एक क्लाउज आ रहा है, तो जब एक क्लाउज प्रीपोजिशन के बाद आता है तो उसी को बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाउ ही वर्क्स, ये क्लाउज है कि नहीं है? क्लाउज होने के लिए दो कंडीशन है, क्या है? पहला है कि उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, और इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट है वर्ब भी है, तो ये क्लाउज जरूर है। तो ये क्लाउज क्या है? यहाँ पे ओपी है, ओपी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। ये हम लोग इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये जो क्लाउज आया है हाउ ही वर्क्स, एक क्लाउज से पहले हम लोग को एक प्रीपोजिशन मिल गया है ऑन, तो एक प्रीपोजिशन के बाद जो क्लाउज आता है उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। फिर लास्ट वाला देखिएगा। अब हम लोग का बस लास्ट एक बचा हुआ है। चार फंक्शन था, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो गया। लास्ट में क्या बचा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट का। देखिए दिस इज व्हाट ही सेज, दिस इज यह चीज है, व्हाट ही सेज जो वो बोलता है, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं वो मैं वही बोल रहा हूं जो वो बोलता है, ठीक है। दिस हो गया क्या? इसका पैटर्न है, देखो एसवीसी पैटर्न पर है, एस वी सी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया क्या आप लोग का वर्ब, और व्हाट ही सेज जो वो बोलता है, ये जो आप लोग का क्या बन रहा है? क्लाउज बन रहा है, नाउन क्लाउज जो बन रहा है, ये यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट बोलते किसको है? थोड़ा सा इसको भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है एक ऐसे शब्द को जो एक सेंटेंस में ला करके सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। तो इन द केस दैट, अगर एक ऐसा केस बन रहा है, एक ऐसा स्थिति बन रहा है कि जब एक कॉम्प्लीमेंट एक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी है, जनरली अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है। अगर हम लोग बोलेंगे, अगर यहाँ से मान के चलो कॉम्प्लीमेंट को हटा दो, व्हाट शी सेज, ये है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर मान के चलिए हटा देंगे तो खाली क्या बचेगा हम लोग के पास? दिस इज, यह है। तो ये इतना बोलने से बात पूरी समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को लाते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लाउज है फंक्शन कर रहा है किसका? कॉम्प्लीमेंट का, ओके। ओवरऑल टू सम ऑफ दिस लेसन वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो नाउन क्लाउज है, नाउन का फंक्शन करता है किसी एक सेंटेंस में। नाउन का फंक्शन करने से क्या मतलब जा रहा है कि वो सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट होकर आ सकता है, as you can see and as you can examine in this first example, okay. And noun clause can also act as object, just as we discussed in the second example, and the noun clause can also act and complement, just toward that in the third example. It depends on how, sorry, complement का example कौन सा है? What she says ना, ये पे। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आप लोग को ये तीसरा वाला एग्जांपल में बताया गया है, ओके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक क्लाउज को दो टाइप में बांटा गया, पहला था मेन क्लाउज, दूसरा था सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसको हमने क्या किया? उसको तीन टाइप में बांटा, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, जिसको में हमने आज के इस लेसन में सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? नाउन क्लाउज को डिस्कस किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एडजेक्टिव क्लाउज को और एडवर्ब क्लाउज को, ओके। बस एक बार स्लाइड को शो कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। Okay, this is the beginning of the lecture. This is your first slide. Going to the next slide, third slide, and the last slide of the lecture. Okay, that's all for today. Thank you very much.